Hello everyone. So today the topic for revision is cord prolapse. So let's start with it. So there are three clinical types of abnormal descent of the umbilical cord by the side of the presenting part. ठीक है. So जो हम topic revise करने जा रहे हैं आज, ठीक है, इसके अंदर क्या है? We are going to discuss about the abnormal descent of the umbilical cord. ठीक है. तो इसके अंदर आपके थ्री वेरिएशंस आती हैं, थ्री टाइप्स आती हैं. नंबर वन इज ओकल्ट प्रोलैप्स, सेकंड वन इज कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन इज कॉर्ड प्रोलैप्स. राइट. सो विल बी डिस्कसिंग वन आफ्टर वन. सो दिस इज द पिक्चर शोइंग ओकल्ट प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स. सो नंबर वन पिक्चर विच शोज ओकल्ट प्रोलैप्स. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है दैट इज presented at the side of the presenting part, that is lying at the side of the presenting part. Chord presentation में क्या होगा, ये देखिए, जो presenting part है उसके नीचे slip down हो जाती है chord, that is chord presentation. And chord prolapse में क्या है, जो chord होगी that will be coming out of the vulva. ठीक है. So number one is occult prolapse. So the cord is placed by the side of the presenting part and is not felt by the fingers on internal examination. ठीक है. तो इस तरह की जो abnormality है descent of the cord की, ठीक है, सो उसमें क्या होगा, जो cord होगी that will be lying at the side of the presenting part. ठीक है. and it is not felt at the time of examination, internal examination, right? Then next comes cord presentation. So what happens in cord presentation, as you can see in second picture, जो middle में है picture, this is representing the cord presentation. So the cord is slipped down below the presenting part and is felt lying in the intact bag of membrane. So इस केस में क्या होगा, जो bag of membrane होगा that will be intact, और जो cord होगी that will be slipped down and will be presented before the this presenting part. ठीक है. and it will be lying in the intact bag of membrane. and third में क्या होगा, cord prolapse में, ठीक है, the condition will be same as in the case of cord presentation. जो difference क्या होगा, इसमें bag of membrane जो है वो rupture हो चुका होगा, इसलिए जो cord है वो भी vulva से बाहर आ चुकी होगी या फिर vagina के अंदर होगी. ठीक है. so that is cord prolapse. so the cord is lying inside the vagina or outside the vulva following rupture of the membrane. Then comes incidence. So the incidence of this abnormal descent of umbilical cord is 1 in 3000 deliveries and it is mostly confined to parous women. So parous women कौन है, जिसने पहले भी deliver किया हुआ है. Then incidence is reduced with the increased use of elective C-section. So if a woman is going for elective C-section, ठीक है, तो उसमें chances इस condition के arise होने के कम हो जाते हैं, and especially if the baby is in non-cephalic presentation, मतलब कि वो breech presentation में है या फिर shoulder presentation में है. ठीक है. Then comes etiological factors. So कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट को डिसेंट होने से प्रिवेंट कर रही है, ठीक है, तो वो कंडीशन जो है कॉर्ड प्रोलैप्स को अराइज कर सकती है. ठीक है. सो टू ऑफन मोर देन वन फैक्टर ऑपरेट्स. ठीक है. ज़्यादातर देखा गया है कि अगर ये कंडीशन होती है प्रेजेंट, तो इसके प्रेजेंट होने के पीछे एक से ज़्यादा रीज़न जो है वो हो सकते हैं. देन कम्स एसोसिएटेड फैक्टर्स. ठीक है. एसोसिएटेड फैक्टर्स में सबसे कॉमन है माल प्रेजेंटेशन, और उसमें भी कॉमन क्या है, लाई, एबनॉर्मल लाई, जो कि क्या है, ट्रांसवर्स लाई. सो 5 to 10% केसेस जो होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स लाई. देन 3% केसेस आर ड्यू टू ब्रीच प्रेजेंटेशन. ठीक है. एंड दैट टू स्पेशली विथ फ्लेक्स्ड लेग्स और फुट लिंक. एंड कंपाउंड प्रेजेंटेशन 10%. ठीक है. कंपाउंड प्रेजेंटेशन है तो 10% चांसेस हो जाते हैं, राइट, इस कंडीशन के होने के. देन नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या होगा, देयर विल बी लाइक नॉट सफिशिएंट स्पेस फॉर द प्रेजेंटिंग पार्ट टू engage itself in the lower uterine segment, so that can lead to this particular condition. Then prematurity can be another reason. Then twin pregnancy can be another causative factor for this condition. Then hydroamnios, when the amount of amniotic fluid is more, so that is a condition that can give rise to abnormal descent of the umbilical cord. Then some of the other factors like placental factors, जैसे कि minor degree of placenta previa. अगर placenta previa है तो that can give rise to this condition. Other than this, if the length of the cord is long, ठीक है, that can lead to this particular condition. Then iatrogenic factors में आते हैं, like if we are manually trying to rotate the
हेड ऑफ द फीटस, ठीक है, जैसे कि हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में या इंटरनल पोडालिक वर्जन में हम करते हैं, तो दैट प्रोसीजर्स कैन गिव राइज टू दिस पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी। देन इंडक्शन, ठीक है, अब जो हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं लेबर पेन, ठीक है, तो उसके साथ ये कॉम्प्लिकेशन जो है राइज होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। Then comes diagnosis. Diagnosis, how we are going to make diagnosis? Number one है for occult prolapse, ठीक है। So occult prolapse जो है that is really difficult to diagnose, ठीक है। So possibility should be suspected, like if we have put that particular woman in labor on this कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, और जब हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ उस मदर का जो फीटस है उसका हार्ट रेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, सो उससे हमें एक सस्पिशन राइज हो सकती है कि देयर कैन बी चांसेस ऑफ ऑकल्ट प्रोलैप्स, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो डीएक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। देन कम्स कॉर्ड प्रेजेंटेशन का डायग्नोसिस। तो जो कॉर्ड प्रेजेंटेशन उसमें आपको बताया मैंने कि इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी होगी और प्रेजेंटिंग पार्ट से आगे पड़ी होगी कॉर्ड। सो इसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। सो देयर कैन बी लाइक फीलिंग ऑफ द पल्सेशन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द इंटैक्ट बैग ऑफ मेम्ब्रेन। तो अगर ऐसा होता है सो दैट इंडिकेट्स कॉर्ड प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है कॉर्ड प्रोलैप्स। So the cord is palpated directly by the fingers and its pulsation can be felt if the fetus is alive, ठीक है। cord prolapse, ठीक है, cord prolapse का कैसे पता चलेगा? या तो cord जो है इस केस में वजाइना के अंदर है या फिर इसके अंदर वल्वा के बाहर आ चुकी है, ठीक है। सो द cord is palpated directly by the finger। सो जब हम इंटरनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अगर वजाइना के अंदर होगी तो हमें वो फील हो जाएगी, ठीक है, और फील तभी होगी उसकी पल्सेशन इफ द फीटस इज अलाइव, और अगर अदरवाइज वो वल्वा से बाहर है तो वो हमें नेक्ड आई से हम उसको देख सकते हैं। देन कॉर्ड पल्सेशन में सीज ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उस टाइम पे पल्सेशन जो है वो सीज हो सकती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जाएगी, व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन गोज ऑफ, तभी जो पल्सेशन है वो रिटर्न आ जाती है, ठीक है। Temptation to pull down the loop for visualization or unnecessary handling is to be avoided to prevent the vasospasm, ठीक है। unnecessary touching of the cord should be avoided, ठीक है, अगर वजाइना में है या फिर वल्वा से बाहर आ चुकी है, क्योंकि उससे क्या है वेसोस्पाज्म जो है वो अराइज हो सकता है, और कोशिश नहीं करनी है उसको बाहर खींचने की कॉर्ड को। सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक फीटल डिस्ट्रेस और वेसोस्पाज्म ऑफ द umbilical cord। Then comes fetus may be alive even in the absence of cord pulsation। पर ऐसा नहीं है कि अगर cord आपको pulsation फील नहीं हो रही that means the fetus is dead, ठीक है। there are chances कि pulsation ना फील हो आपको, ठीक है, लेकिन fetus जो है वो alive हो सकता है उस कंडीशन में। सो इसलिए हमने क्या करना है, USG करना है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें क्लियर हो जाएगा कार्डियक मूवमेंट्स का, ऑस्कल्टेशन से भी क्लियर हो जाएगा, फीटल हार्ट साउंड का हम ऑस्कल्टेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फीटल डेथ हमने कंफर्म नहीं करनी है इस बेसिस पे कि हमें पल्सेशन फील नहीं हो रही है। हमने कंफर्म कब करना है उसको, आफ्टर गोइंग थ्रू द अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ऑस्कल्टेटिंग फॉर फीटल हार्ट साउंड पर एब्डोमिनली, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स प्रोग्नोसिस, ठीक है। प्रोग्नोसिस इसमें आता है फीटस का पहले हम प्रोग्नोसिस देखेंगे कि इफ़ द फीटस इज हैविंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन तो क्या उसके चांसेस हैं आगे, ठीक है। सो द फीटस इज एट रिस्क ऑफ एनॉक्सिया फ्रॉम द मूवमेंट कॉर्ड इज प्रोलैप्स, ठीक है। तो अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हुई है तो उसके साथ एनॉक्सिया के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। Then the blood flow is occluded either due to mechanical compression by the presenting part or due to vasospasm of the umbilical vessel due to exposure to the cold or irritation when exposed outside the vulva or as a result of handling, ठीक है। तो blood flow जो है वो obstruct हो सकता है अगर ये particular condition arise हुई है, ठीक है। तो क्यों हो सकता है, क्योंकि जो presenting part होगा हो सकता है वो compression कर रहा हो, compress कर रहा हो cord को, या फिर जो कॉर्ड बाहर आ गई है, ठीक है, प्रोलैप्स हुआ है कॉर्ड का, बिकॉज इट इज़ बीइंग एक्सपोज टू द कोल्ड, ठीक है, और या उसको हम मैकेनिकली टच कर रहे हैं तो उसकी वजह से वेसोस्पैज्म हो सकता है। तो वेसोस्पैज्म अल्टीमेटली क्या करेगा, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जो कि फीटस तक फिर नहीं पहुंच पाएगा, बेबी तक। Then comes the hazard to the fetus is more in vertex presentation, especially when the cord is prolapsed through the anterior segment of the pelvis or when the cervix is partially dilated, ठीक है। So ज़्यादा chances रिस्क
किस में आता है कि अगर फीटस जो है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है और जो कॉर्ड है वो प्रोलैप्स हो चुकी है, ठीक है, और सर्विक्स जो है वो भी पार्शली डायलेटेड है, उस कंडीशन में जो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं बेबी के रिस्क में जाने के. Then the prognosis is however related with the interval between its detection and delivery of the baby, and if the baby is delivery is complicated within 10 to 30 minutes, the fetal mortality can be reduced to 5 to 10%. ठीक है, तो it depends upon the birth attendants, how skillful और how competent they are. ठीक है, तो prognosis उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि कब आपको पता चला है, किस मोमेंट में पता चला है और उसके कितने टाइम के अंदर आपने बेबी को सेफली डिलीवर कर दिया है. ठीक है, तो उससे जो है मोर्टालिटी रेट जो है वो डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं बिटवीन 5 to 10%. सो दिस इज़ लाइक ज़्यादा मतलब चांसेस हैं ये, ठीक है, कि रिड्यूस हो सकता है मोर्टालिटी रेट बच्चे का, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स मैटरनल जो है प्रोग्नोसिस कैसा है. सो द मैटरनल रिस्क आर इंसिडेंटल ड्यू टू एमरजेंसी ऑपरेटिव डिलीवरी स्पेशली थ्रू द वेजाइनल रूट. ठीक है, तो मैटरनल रिस्क किस पे डिपेंड करते हैं, लाइक हाउ कॉम्पिटेंट द स्टाफ इज़, है ना, और हाउ वेल दे आर कंडक्टिंग द डिलीवरी. ठीक है, देन ऑपरेटेड डिलीवरी इन्वॉल्व्स द रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, ब्लड लॉस एंड इन्फेक्शन. तो अगर वेजाइनली डिलीवरी नहीं हो रही है तो सी सेक्शन से हो रही है, तो उसके साथ जो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, है ना, तो उसके ऊपर भी प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करता है. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस एंड इन्फेक्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स एंटिसिपेशन एंड अर्ली डायग्नोसिस. जैसे कि आपको बताया कि अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा इसका और अच्छे से आप इसको फिर अच्छे प्रॉपर इंटरवेंशंस के साथ प्रोसीजर करोगे डिलीवरी का, तो दैट कैन रिड्यूस द मॉर्बिडिटी रेट ऑफ द फीटस. ठीक है, तो कैसे आप कर सकते हो. देन इसमें आ जाता है आपका इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी डन वेन एवर द मेम्ब्रेन रप्चर प्रीमेच्योरली और ड्यूरिंग द लेबर इन ऑल द केसेज ऑफ माल प्रेजेंटेशन, ट्विंस, हाइड्रोएमनियोस, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन वेयर द हेड इज नॉट एंगेज. ठीक है, सपोज द हेड इज नॉट एंगेज. ठीक है, तो आपने इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो करना है. ठीक है, अगर बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुका है. ठीक है, तो जैसे ही बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होगा इंटरनल एग्जामिनेशन करना है वेदर इट हैज़ बीन रप्चर्ड प्रीमेच्योरली और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर. ठीक है, तो उससे आपको कंफर्म होगा इसका डायग्नोसिस. देन सर्जिकल इंडक्शन शुड बी प्रेफरेबली बी कंडक्टेड इन द ऑपरेशन थिएटर कीपिंग एवरीथिंग रेडी फॉर द सी सेक्शन. सर्जिकल इंडक्शन हम किसे बोलते हैं, एमनियोटमी को. तो जब हम एमनियोटमी कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट शुड बी डन ओनली इन द लाइक डिलीवरी रूम. ठीक है, या फिर ऑपरेशन थिएटर में आपने उसे करना है और सारी सी सेक्शन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे. ठीक है, क्या इमरजेंसी अगर आपको सी सेक्शन करना पड़े, प्लान आपने किया था वेजाइनल के लिए लेकिन आपको इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़े अगर, तो सारी फैसिलिटीज़ पहले से अवेलेबल होनी चाहिए. और ये जो प्रोसीजर है एमनियोटमी का दैट शुड ओनली बी डन इन लेबर रूम. ठीक है, लेबर रूम और यू कैन से इन ऑपरेशन थिएटर. Then next comes the uterine contraction may be initiated by oxytocin if the head is not engaged prior to the low rupture of the membrane. Suppose कि head अभी engage नहीं हुआ था और आपने amniotomy किया है, तो आपने amniotomy के बाद क्या करना है, uterine contractions को initiate करवाना है, labor आपने augment करवानी है by administering oxytocin. ठीक है, then internal examination both before and after amniotomy should be carried out with cord accident in mind. internal examination आपने करना है, ठीक है, ज़रूर करना है आफ्टर amniotomy. ठीक है, ताकि आप देख सको क्या देख सको आप कि कॉर्ड जो है वो प्रोलैप्स तो नहीं हुई है या प्रेजेंटेशन तो नहीं है या ऑकल्ट प्रोलैप्स तो नहीं है वहाँ पे. ठीक है, तो इंटरनल एग्जामिनेशन करना है बिफोर एंड आफ्टर द एमनियोटमी. ठीक है, एमनियोटमी करने से पहले भी और करने के बाद भी. Then one should exclude cord presentation or occult prolapse in unexplained fetal distress during labor. अगर सपोज फीटस को कॉर्ड प्रेजेंटेशन है या occult prolapse है, ठीक है, तो लेकिन उससे उसकी जर्नल कंडीशन पे या फीटस की कोई जर्नल कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं एंड वी कैन कंटिन्यू विद द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द लेबर एज वी डू इन द नॉर्मल डिलीवरी. देन है मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मैनेजमेंट करेंगे फॉर कॉर्ड प्रेजेंटेशन.
So the aim is to prevent the membranes and to expedite the delivery, right? So this is the aim. Then once the diagnosis is made, no attempt should be made to replace the cord. ये बहुत important point है इसमें कि अगर cord जो है वो prolapse हो चुकी है तो we should not like try to replace the cord, as it is not only ineffective but the membranes inevitably rupture leading to the prolapse of the cord. ठीक है, suppose bag of membrane जो है वो rupture नहीं हुआ है और आपने इंटरनल एग्जामिनेशन किया, आपको पता चल गया कि कॉर्ड पल्सेशन आपको फील हो रही है, तो कॉर्ड प्रेजेंटेशन का जो है डायग्नोसिस बन गया। लेकिन उस टाइम पे आप कॉर्ड को दोबारा अंदर भेजने की कोशिश नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इसलिए हमने तब नहीं करना है ये चीज़। कॉर्ड प्रेजेंटेशन के केस में कॉर्ड को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करनी है। So if immediate vaginal delivery is not possible or contraindicated, C-section is the best method of delivery. और इस कंडीशन में जब कॉर्ड प्रेजेंटेशन आपको पता चल गया है कि प्रेजेंट है, तो vaginal डिलीवरी अगर कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, या पॉसिबल नहीं है उस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो हमने C-section के लिए ऑप्ट करना है। देन कॉर्ड प्रेजेंटेशन के साथ ही कंटिन्यू में है ये मैनेजमेंट में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर ऑपरेटिव डिलीवरी, शी इज केप्ट इन एग्जैजरेटेड सिम पोजीशन टू मिनिमाइज कॉर्ड कंप्रेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमने प्लान कर लिया है कि कॉर्ड प्रेजेंटेशन है तो हमने C-section करना है, लेकिन तब तक जब तक ऑपरेट नहीं होता है तब तक पेशेंट को हमने सिम्स एग्जैजरेटेड पोजीशन देनी है। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के हिप के नीचे एक वेज बना देते हैं, पिल्लो रख देते हैं, जिससे कि वो लिफ्ट हो जाएगा, प्रेजेंटिंग पार्ट लिफ्ट हो जाएगा और वो कॉर्ड को कंप्रेस नहीं करेगा। ठीक है। देन अ रेयर ओकेजन इज अ मल्टीपैरा विद लॉन्गिट्यूडनल लाई हैविंग गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस विद द सर्विक्स 3 to 4 फिंगर्स डायलेटेड, मतलब कि 7 से 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है विदाउट एनी एविडेंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है। So then next है watchful expectancy can be adopted till full dilatation of the cervix when the delivery can be completed by forceps or breech extraction. Suppose आप vaginal delivery करवा रहे हो, ठीक है, मतलब प्लान कर रहे हो vaginal delivery के लिए, बिकॉज वो उस केस में पॉसिबल है, तो वी कैन गो फॉर वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी। हम वेट करेंगे कि सर्विक्स जो है पूरा का पूरा डायलेट हो जाए, ठीक है, और फिर आप डिलीवरी को कंप्लीट करोगे वन सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, either by the forceps or by a breech extraction, अगर breech presentation में है बच्चा। ठीक है। Then next comes cord prolapse. So cord prolapse की मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल आ जाते हैं आपके। बेबी लिविंग है या डेड है, whether the baby is premature और term baby है, then degree of dilatation of the cervix। तो इन तीनों चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए आगे प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड करना है। सो सबसे पहले आती है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आपका आ जाता है सिजेरियन सेक्शन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट व्हेन द बेबी इज सफिशिएंटली मैच्योर एंड अलाइव। ठीक है, बेबी जो है वो मैच्योर है और अलाइव है और कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, C-section। देन जस्ट प्रायर टू एब्डोमिनल इंसिजन द फीटल हार्ट साउंड शुड बी ऑस्कल्टेटेड। एब्डोमिनल इंसिजन देने से पहले हमने फीटल की हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करनी है। ठीक है, क्योंकि फाइंड आउट करने के लिए कि बेबी डेड है या लाइव है। अगर बेबी डेड होगा तब हम C-section नहीं करते हैं, फिर हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स करते हैं, है ना, अगर बेबी इजीली वजाइना से डिलीवर नहीं होता है। द ऑपरेशन शुड बी डन क्विकली अप टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो फटाफट से हमने जो है फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करने के बाद डिलीवर करना है बेबी। ठीक है। देन इमीडिएट सेफ वजाइनल डिलीवरी इफ पॉसिबल। अगर वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है कॉर्ड प्रोलैप्स के केस में, तो क्या क्या देखना है हमने, इफ़ द हेड इज एंगेज डिलीवरी इज टू बी कंप्लीटेड बाय फोर्सेप। अगर हेड जो है वो एंगेज्ड है और डिलीवर होने में प्रॉब्लम आ रही है हमें हेड को, तो हमने फोर्सेप्स अप्लाई करने हैं। देन वेंटोस में नॉट बी आइडल इन सच सर्कमस्टांसेस एज इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। वेंटोस का हमने इस्तेमाल नहीं करना बिकॉज दैट प्रोसीजर इज लिटल टाइम कंज्यूमिंग इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स। Then if the baby is in breech presentation, the delivery is to be completed by breech extraction. Vaginal से हमने डिलीवर करना है बेबी को, अगर breech presentation में है by breech extraction। ये प्रोसीजर आपको कराया गया है क्लास में डिटेल में। ठीक है। And if it is in transverse lie, it should be completed by internal version followed by breech extraction। और अगर बच्चा transverse lie में है, ठीक है, तो पहले हमने उसको internal version करेंगे ताकि हम पोडालिक पोल और सेफेलिक पोल को अपने रिक्वायर्ड पोल्स पे हम उसको लेकर आएँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रीच एक्सट्रैक्शन। द सेम ऑल्सो अप्लाइड इन केसेज वेयर द हेड इज नॉट एंगेज्ड इन सेकेंड बेबी ऑफ द
ट्विन्स, ठीक है। ये सेम केस हमने लगाना है अगर ट्विन बेबी है और फर्स्ट बेबी जो है वो डिलीवर हो चुका है और सेकंड का हेड जो है वो एंगेज नहीं है, तो सेम हमने प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। देन थर्ड आ जाती है कंडीशन, अगर सपोज वजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है एंड कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट हमने क्या करनी है, ठीक है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट में आपका आता है द एम इज टू मिनिमाइज प्रेशर ऑन द कॉर्ड टिल सच टाइम when the patient is prepared for assisted delivery or is transferred to an equipped hospital। तो हमने फर्स्ट एड मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम लिफ्ट करेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट को ताकि वो कॉर्ड के ऊपर प्रेशर जनरेट ना करे। तो हमने सिम्स एक्सेजरेटेड पोजीशन जो पहले बताई वो देनी है पेशेंट को। इफ़ द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज ऑन दिस शुड बी स्टॉप, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अगर चल रही है तो वो स्टॉप करनी है हमने। At this time intravenous fluid and oxygen by face mask is given, ठीक है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट में। देन ब्लैडर फिलिंग कर सकते हैं हम ताकि हम लिफ्ट कर सके प्रेजेंटिंग पार्ट को। सो ब्लैडर फिलिंग हैज़ बीन डन टू रेज द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कंप्रेस्ड कॉर्ड टिल सच टाइम दैट पेशेंट हैज़ डिलीवर्ड। तो अभी डिलीवरी में अगर टाइम है उसको ट्रांसफ़र करना है हमने वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में, तो उस टाइम तक हम ब्लैडर फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो कॉर्ड को कंप्रेस ना करे, थोड़ा लिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ। तो इसमें करते क्या है, हम ब्लैडर को हम फिल कर देते हैं 400 to 750 ml नॉर्मल सलाइन से विद द हेल्प ऑफ अ फॉलीज कैथेटर, और बैलून को हम इन्फ्लेट करके रखते हैं और कैथेटर को हम क्लैम्प कर देते हैं, ठीक है। एंड द ब्लैडर इज जस्ट एम्प्टेड बिफोर द सी सेक्शन डिलीवरी। जैसे ही सी सेक्शन करना है उससे जस्ट पहले हम उसको ब्लैडर को एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। देन to lift the presenting part of the cord by the gloved fingers introduced into the vagina. The fingers should place inside the vagina till definitive treatment is instituted. और भी तरीका है, हम क्या करेंगे, ग्लव्ड फिंगर के साथ हम, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट को जो है वो लिफ्ट करेंगे ताकि वो कॉर्ड को कंप्रेस ना करे। अगर और मेथड जो आपको पहले आपको बताएं अगर वो पॉसिबल नहीं थे, ठीक है। देन पोस्चरल ट्रीटमेंट, पोस्चरल ट्रीटमेंट में सेम आ जाएगा एक्सैजरेटेड एंड एलिवेटेड सिम पोजीशन विद द पिल्लो और वेज अंडर द हिप और द थाई ऑफ द वुमेन, ठीक है, ये हम दे सकते हैं। और पहले क्या करते थे, सिम्स एक्सैजरेटेड पोजीशन का यूज़ नहीं किया जाता था, पहले किया जाता था ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का या फिर नी चेस्ट पोजीशन का। बट ये दोनों पोजीशन जो हैं कुछ पेशेंट्स के लिए ये टायरिंग भी होती हैं, प्लस थोड़ा रिस्क भी होता है इनके साथ। तो सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी है प्रेजेंटिंग पार्ट को लिफ्ट करने के लिए कॉर्ड के ऊपर से, एक्सैजरेटेड सिम्स पोजीशन, एक्सैजरेटेड एंड एलिवेटेड सिम्स पोजीशन विद अ पिल्लो और वेज अंडर द हिप और थाई। देन टू रिप्लेस द कॉर्ड इनटू द वजाइना, ठीक है। अब कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है तो हम कॉर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं वजाइना के अंदर, क्योंकि बाहर कोल्ड से वो एक्सपोज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम वेसोस्पैज़म को कम करने के लिए हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं वजाइना के अंदर। देन है डेड बेबी, सो लेबर इज़ अलाउड टू प्रोसीड अवेटिंग स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। अगर बेबी के अंदर डेथ हो चुकी है और उसको डिलीवर करवाना है हमने, कॉर्ड प्रोलैप्स का केस है, तो हमने सेम प्रोसीजर लेना है जो हम नॉर्मल डिलीवरी में लेते हैं, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होने देंगे और लेबर का प्रोसेस को कंटिन्यू होने के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है। बट अगर सपोज लेबर जो है वो हेड जो है वो स्टक हो जाता है, तो उस केस में क्या है, फिर डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन है हमारे पास, क्रेनियोटमी है, ठीक है, या कोई और पार्ट बच्चे का जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है डिलीवरी में, तो हम और जो प्रोसीजर्स हैं हमारे, जैसे कि इविसरेशन होता है, ठीक है, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं टू डिलीवर अ डेड बेबी, राइट। I hope this topic is clear to you, as this was a revision class. So still, if you are having any doubt, you can ask me at any time via call or messages. Thank you so much.